Hello students, in lecture number 3 on linear programming, we will deal with the second point in this chapter, the meaning of linear programming problem. Now in business and industries, in different fields like management, planning, production, transportation, diet, investments, advertising firms, in all those industries, managers has to do the efforts so that within the limited resources available, the company or firm has to gain maximum returns, and hence proper planning should be done. So this linear programming problems gives us in the limited resources how to plan to make the profit in the business maximum profit, minimum loss. When we want to supply diet to the patients in some hospital, then in minimum cost, how to provide the maximum nutrients through the diet. Investments under different schemes, an investor can invest to get maximum profit if proper planning is done. So in such business problems, we can use this linear programming problems. So you can define some terms before going to actual problems. What is the meaning of linear programming problem? It is defined as the problem of optimizing. Optimize means maximize or minimize a linear function. यहाँ पर linear function जो रहेगा वो एक तो profit होगा, maximum profit, loss अगर चाहिए तो minimum loss, cost चाहिए जो भी हमको सप्लाई करना है at minimum cost. तो optimizing a linear function subject to the linear constraints. Subject to the linear constant means restrictions. Limited resources are there. So within those resources, within those restrictions, constraints, we have to plan to get optimum value of the function. It may be profit, it may be loss, it may be cost, etc. in any business. तो इसमें ये जो लीनियर फंक्शन है जिसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते, मतलब मैक्सिमाइज करना चाहते या मिनिमाइज, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन. लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स उसमें दो वेरिएबल्स मैक्सिमम यूज करेंगे हम. लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड इज कॉल्ड objective function. That will be our object. What is the meaning of solution of LPP? Of course, solution means the values of x and y. जैसे हमने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाले.
सॉल्व करके, ग्राफिकली सॉल्व करके, all the values of x and y satisfying the given inequations, given restrictions, given constraints. तो उसी प्रकार यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स इन द मैथमेटिकल फॉर्म, दिस टेक्निक इज नथिंग बट मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो solution of LPP will be those values of x and y which satisfy all the constraints given. उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? वो जो कॉमन सॉल्यूशन रहता है उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो उसमें से वहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते, तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन से सॉल्यूशन के लिए रहेगी? That is called as optimal feasible solution. अब यहाँ पर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको निकालना, अगर मान लो एक आधी कंपनी है जहाँ चेयर्स और टेबल्स बनाती है, दो ही आइटम्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर ऑल दिस कंडीशंस. जैसे टाइम इतना है और मनी पावर, मैन पावर, जो भी है restrictions, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल शुड बी 100, उसके ऊपर नहीं. तो ऐसी कंडीशन जब है, x सपोज करेंगे हम नंबर ऑफ चेयर्स, y नंबर ऑफ टेबल्स, तो x प्लस वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू 100. अगर ऐसा है तो इस प्रकार के आपको इन इक्वेशंस मिलेंगे, सब लीनियर रहेंगे. लीनियर कॉन्स्टेंट्स, कहीं भी वहां पर डिग्री 2 वाला वेरिएबल नहीं दिखेगा. इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है इनको बोलेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन दिस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इन दोस प्लानिंग प्रॉब्लम्स, ऑल द इक्वेशंस और इनइक्वेशंस, all the functions are linear in nature. तो out of all these infinite solutions, feasible solutions, optimal solution कौन सा रहेगा? x और y की वैल्यूज कौन सी रहेगी जहां पर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, लीनियर फंक्शन इज मैक्सिमम, दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम. इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता. तो उसमें हम क्या करेंगे, आउट ऑफ ऑल दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये सभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे विल फॉर्म द कॉन्वेक्स सेट्स. ये तो हमने कल बताए थे इसके पहले लेक्चर में. कॉन्वेक्स सेट फिर वो पॉलीगोनल रह सकता, क्वाड्रिलेटरल, या फिर ट्रायंगुलर रह सकता, क्लोज या ओपन भी रह सकता. इस प्रकार ओपन है कॉन्वेक्स है. वो कॉन्वेक्स सेट का मतलब, if we consider any 2 points in that set, then the segment totally lies in the set. तो इसमें से यहाँ जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे, तो कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है, वो हमको ये स्टेटमेंट बताएगा. ये दोनों स्टेटमेंट्स हम बोलेंगे थेरम्स, जिसको विदाउट प्रूफ आप एक्सेप्ट करेंगे. फर्स्ट थेरम, फर्स्ट स्टेटमेंट, the set of all feasible solutions of LPP is a convex set. क्योंकि यहाँ पर सभी स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ से हो स्ट्रेट लाइंस. कॉन्वेक्स सेट सिर्फ एक तो क्लोज रहेगा या फिर ओपन रहेगा, इतना ही फर्क. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP अटेन्स द ऑप्टिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एट लीस्ट एट वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. उसको वर्टाइसेस कितने हैं? 4 इन इक्वेशंस है, तो क्वाड्रिलेटरल मैक्सिमम मिलेगा आपको. मैक्सिमम 4 वर्टाइसेस, 5 नहीं. कम भी रह सकते, यहाँ 2 ही वर्टाइसेस है.
1 2 3 बाउंड्रीज है, वर्टासेस 2 सिर्फ, इधर नहीं दिख रहा कहीं। तो बाकी के पॉइंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये लिमिटेड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पहचानना है, देखना है। ग्राफ जब निकालोगे आप तो फ्रॉम द ग्राफ दोज पॉइंट्स विल बी क्लियर। एक आधा ओरिजिन में रह सकता, नहीं है तो फिर बाकी कौन से 2 पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट वन ऑफ द वर्टासेस, एटलीस्ट एट वन ऑफ द वर्टासेस, मतलब एक से ज्यादा भी वर्टासेस पे रह सकती वही वैल्यू। तो इस थ्योरम का यूज हम करेंगे। और एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है तो अवेलेबल अपने पास 2 मेथड्स है, एक है ग्राफिकल, दूसरी है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड इज लेंथी, इट इज नॉट इन योर कोर्स, ओनली वन मेथड इज देयर, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें आपको प्रॉब्लम कैसा दिया जाएगा, प्रॉब्लम जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं हम, यू विल बी आस्क्ड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सम लीनियर फंक्शन। वो फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या कॉस्ट होगी, ये सभी लीनियर फंक्शंस इन एक्स एंड वाई है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई, वहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं दिखेगा आपको। You have to maximize such function under subject to some conditions, जैसे 2x plus 3y is less than or equal to 100, x plus 4y is less than or equal to 50, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। ये हुए आपके कॉन्स्टेंट्स। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, मैक्सिमाइज द फंक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को नोट करो, ग्राफ के लिए उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, पहली स्टेप। बाद में you have to locate the region, common region, shade the region। उस कॉमन रीजन में सेकंड स्टेप हो गई कॉमन रीजन मिलाने की। थर्ड स्टेप में आपको एक कॉर्नर पॉइंट्स जिनको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, वो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो। और चौथी स्टेप, चौथा मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इस चैप्टर पे 4 मार्क्स आर अलॉटेड। 4 मार्क का जनरली एक ही क्वेश्चन पूछते इस प्रकार का, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट। यहाँ पर ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, वो 10x plus 15y ऐसा। तो आधा प्रॉब्लम तो हमने पहले ही समझा दिए, मतलब हाउ टू फाइंड द फिजिबल रीजन 7.2 में। उसके आगे कंटिन्यू करना है आपको 2 मार्क के लिए, एक कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, उसके बाद में हर पॉइंट पे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो और कहाँ पे वो मैक्सिमम आती वो हम ढूंढ सकते। मान लो एक पॉइंट पे आ गई 0, दूसरे पे आ गई 10, तीसरे पे आ गई 15, चौथे पे आ गई 7, तो 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यू कैन कंक्लूड दैट दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट के लिए जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होगी तो वो होगा आपका सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे उसको हम।
ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। आपको डेफिनेशंस हो ना तो किताब में तो दी है डेफिनेशंस, कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको मालूम होना किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू अगर पूछ लिए 2 मार्क का तो उसमें ये सब कंसेप्ट्स क्लियर होना, इसलिए मैंने यहाँ पर एट ए ग्लांस लिख के दिया कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको याद रखना है। तो इस मेथड को है तो ग्राफिकल मेथड ही, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार और है, उसमें सिर्फ एक प्रकार है जो मैंने बताया आपके कोर्स में है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एलपीपीआर 2, एक ग्राफिकल और दूसरी सिंप्लेक्स। ग्राफिकल के भी 2 प्रकार, सिंप्लेक्स में एक प्रकार। ग्राफिकल में 2 कौन से, एक कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा बोलते हैं उसको आइसोट्रॉपिक या आइसोलॉस, वो अलग मेथड है। तो केवल हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को यहाँ पर मान लो कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी, इनकी स्टेप्स नोट करना है तो सबसे पहली स्टेप कौन सी होगी? ग्राफिकल मेथड के नीचे एक ही मेथड है वहां पर, कॉर्नर पॉइंट मेथड। सेकंड मेथड इज नॉट इन योर कोर्स, पुराने कोर्स में था दिया हुआ कॉर्नर पॉइंट मेथड। इस मेथड की स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4। इन इक्वेशंस लिखो, बाद में टेबल बनाओ, फिर पॉइंट्स प्लॉट करो, ग्राफ्स निकालो, और ग्राफ निकालने के बाद में ग्राफ्स मीन्स लाइंस, सभी स्ट्रेट लाइंस रहेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है वो। एंड locate the feasible solution। उस रीजन को लोकेट करो, फिजिबल रीजन भी बोल सकते हो उसको आप। फिर इसके बाद में फाइंड, सेकंड स्टेप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस को ही हम बोलते कॉर्नर पॉइंट्स। उसके बाद में फाइंड द वैल्यूज ऑफ objective function, means the function to be optimized। Find the values of objective function at all corners vertices। ठीक है, और उसमें से आपको देखना है कि कहाँ पर ऑप्टिमम वैल्यू है, और वो देख के फिर आपको अपना आंसर लिखना है लास्ट स्टेप में। राइट द optimal solution। This is how you can complete the given linear programming problem in 4 steps।
देखते हैं, हम एक LPP लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ग्राफिकली. कॉर्नर पॉइंट मेथड. 7.3 नहीं 4. 7.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स दिए और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इस साल नहीं पढ़ना है. यू हैव टू डिलीट दैट एक्सरसाइज 7.3. मतलब पेज नंबर 235 से 235 का जो 7.22 मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ LPP, वो पार्ट ड्रॉप करना है. पेज नंबर 236, 237 टू 238. जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, 9 प्रॉब्लम्स आर गिवन in that 7.3. all are to be ignored. सेल्फ स्टडी के लिए आप उनको देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है. उसके बाद में 7.4 के लिए हमने जो आपको कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस बताए वो 238 पेज पे है, 239 पेज पे. और सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है, उनको भी आपको देखना है. एक प्रॉब्लम हम 7.4 से लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है वहां पर 7.4 का. Solve the following LPPs by graphical method. By graphical method. First LPP is maximize. कहीं पे minimize भी हो सकता. Maximize the objective function. It is denoted by Z here. X, Y, Z के सीरीज में. Maximize this function. It is given by 11x plus 8y. Only 2 variables are allowed. ज़्यादा वेरिएबल्स है. चेयर, टेबल और स्टूल भी तैयार कर रही है एक आधी कंपनी. एक्स टेबल्स, एक्स चेयर्स, वाई टेबल्स और जेड स्टूल्स. तीसरा वेरिएबल वहाँ पर आ जाएगा. लेकिन अभी हम ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स कंसिडर करें जहाँ पर केवल 2 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड. 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन द डाइट आर टू बी सप्लाइड. उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग हो सकते, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एटसेट्रा. लेकिन टाइप्स 2, एक टाइप x, दूसरे टाइप y. तो x एंड y 2 वेरिएबल्स ओनली. दिस फंक्शन इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस. पहली कंडीशन, x is less than or equal to 4. दूसरी, तीसरी, under those restrictions you have to obtain the maximum value of this objective function z. कितने कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर
1 2 3 4 5 इन इक्वेशंस मीन्स 5 कॉन्स्टेंट्स। हालांकि यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसमें भी बता सकता था वो, लेस देन और इक्वल टू 4 जहाँ बताया उसी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा उसी में इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 इन 1 इसमें 2 है, इसमें भी 2 बना सकते हो आप। अलग अलग लिखना ही है तो 2 यहाँ के 2 यहाँ के 4 और एक 5, अलग लिखना है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, ग्राफ्स। टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ these inequations, first convert them in equations. The corresponding equations are, पहला x इज इक्वल टू 4, आप चाहो तो ये कॉन्स्टेंट्स, गिवन कॉन्स्टेंट्स आर, गिवन रेस्ट्रिक्शंस आर, गिवन इनइक्वेशंस आर, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अभी हमारे पास में सामने ही है तो इनका यूज करके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस कौन से बनते, केवल उतना लिखेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, सब जानते हैं, इसलिए उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने एक खड़ी लाइन निकाले मतलब हो गया वो x इक्वल टू 0, आड़ी लाइन निकाले मतलब y इक्वल टू 0, x एक्सिस। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये है पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। इनकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका। इसके लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ बना लो, 2 पॉइंट्स, एक x एक्सिस का और दूसरा y एक्सिस का। x एक्सिस का पॉइंट है ना, वहां पर y 0 रहता, x एक्सिस का पॉइंट y 0, तो x कितना होगा वो बताओ। और y एक्सिस का पॉइंट है ना x 0, वहां पर y कितना है वो देख लो। तो इक्वेशन का यूज करके यहाँ y का जगह 0 पुट करो और x मिलाओ, x के जगह 0 पुट करो y मिलाओ, तो एक पॉइंट होगा 6 0, दूसरा 0 6। यहीं पे हम ग्राफ्स बनाते, पहली स्टेप हो जाएगी पूरी। ये ग्राफ किसका होगा बताओ। ये जो लाइन है दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। y equal to 0, x equal to 0 means x equal to 0 means y axis। स्केल से निकालेंगे तो सीधी निकलेगी लाइन, ए ओरिजिन
हमने नेगेटिव पार्ट छोटे रखे जानबूझ के, क्योंकि these two inequalities are there, means solution set will be completely in the first quadrant. मैक्सिमम x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू भी 6 है, तो यहाँ ये जो मार्किंग है 6 आना चाहिए कम से कम, तो इसको 2 2 ले लेंगे, 2 4 6, यहाँ पर भी 2 4 6, इक्वल डिस्टेंस लिए तो प्रोपोर्शनेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन सेट फिजिबल रीजन आपको मिलेगी। थोड़ा सा और स्पेस बड़ा है तो और क्लियर स्पेस आपका जो रहेगा, रीजन जो रहेगी फिजिबल रीजन सॉल्यूशन सेट, कॉमन सॉल्यूशन सेट, वो और अच्छे से दिखेगी आपको। तो पहली लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी रहेगी। बाद में y इक्वल टू 6, ऐसी रहेगी पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों लाइंस निकाल लेते, x इक्वल टू 4 y is equal to 6, ये थोड़ी तिरछी होगी, इसको कर देते सीधी। एक और लाइन बची है, 4 लाइन हो गई निकाल के। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6। एक पांचवी लाइन बची है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसका ग्राफ, तो एक पॉइंट है 6 0 और दूसरा है 0 6। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी दैट विल बी द लाइन हुज इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर कर लो ज्वाइन दो पॉइंट्स, इक्वेशन लाइन दिख रही। Now what is the common region, common solution set, feasible region for these restrictions, constraints? तो देखो इस लाइन का ओरिजिन साइड शेड होगा कि नॉन ओरिजिन, इसमें इनइक्वालिटी दी है लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ओरिजिन साइड, क्योंकि 0 प्लस 0 है 0, इट इज लेस देन 6, तो इसकी आएगी ओरिजिन साइड। फिर ये राइट साइड और ये अपर साइड तो मालूम है, रहा सवाल इस लाइन का, इसका ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड। x इज, यहाँ की इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन और इक्वल टू 4, तो दैट इज ओरिजिन साइड, इधर ग्रेटर देन 4 है वो, तो आपको ये रीजन मिलेगा। इस लाइन का पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट कॉमन बन रहा है, इसलिए एक
साइड कम हो रही, 5 इन इक्वेशन है तो 5 साइड बनना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 बन रही। ये लाइन अगर मान लो y इज इक्वल टू 6 के जगह y इज इक्वल टू 4 बनती या 5 बनती तो यहाँ आता वो लाइन, तो यहाँ पर एक और बाउंड्री बन जाती पांचवी, पेंटागन। लेकिन मैक्सिमम 5 साइड्स रहेंगे, लेकिन उससे कम भी रह सकती है ड्यू टू दिस रीजन। तो शेडिंग करो बाय यूजिंग स्केल, ड्रॉ पैरेलल लाइंस। कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से एक लाइन निकाले, उसी को पैरेलल दूसरी, उसी को पैरेलल तीसरी, स्केल से निकालेंगे तो शेडेड रीजन भी अच्छा दिखेगा। This is the convex set. Convex set whose vertices are O, A, B, C. तो पहला स्टेप हो गया अपना ड्राइंग द ग्राफ्स शोइंग द feasible region, feasible solution we have located. सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो यहाँ पर फिजिबल रीजन कौन सी है वो लिख लेंगे, बाद में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और आखिरी में फोर्थ। तो ग्राफ के नीचे क्या लिखेंगे बताओ, ग्राफ के नीचे लिखेंगे हम द शेडेड रीजन। क्या नाम दिया उसको हमने, द नेम ऑफ द शेडेड रीजन इज O A B C, इज द फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप ऑफ द गिवन इनइक्वेशंस कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद में ये आपने नहीं भी लिखे ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स तो भी चल सकता। इसके बाद में हम इट्स वर्टिसेस आर वो लिखेंगे, उसमें का एक आध वर्टेक्स आपको नहीं भी समझ में आएगा, कुछ वर्टिसेस डायरेक्ट बता सकते, जैसे यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वर्टिसेस आर O 0 0, A फिगर आवश्यक है ना, A के कोऑर्डिनेट बताओ 4 0, B तो पता करना पड़ेगा, C लिख सकते हैं हम डायरेक्ट पहले, C 0 6, जो डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं वहां पर क्लियर उनको पहले लिख लेते, बाद में बाकी अगर मान लो एक दो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सोचते। जो बचा है B, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, उसमें से एक लाइन है x इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 4, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 तो बनेगा ही। रहा सवाल y कोऑर्डिनेट का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सेकंड लाइन में x के जगह पे 4 पुट करके y मिला सकते हैं, सॉल्विंग टू लाइंस। जो चौथा वर्टेक्स है B, its vertices are O A C B, B is the point of intersection of
which two lines? पहली लाइन x इक्वल टू 4 और दूसरी x प्लस वाई इक्वल टू 6. So the coordinates of B will be 4 2. इस 4 को उधर ट्रांसफर कर देते तो 6 minus 4 means 2 y कोऑर्डिनेट. अगर यहाँ पर लाइन ऐसी अगर रहती 3x minus 4y is equal to 5, x plus y equal to 6, ऐसी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर आपको सॉल्व करके खोजना पड़ेगा. एलिमिनेट y, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करके कैंसिल हो जाएगा. 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल, इधर कितना होता देखो, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पुट करेंगे तो y मिलेगा. सॉल्व करना है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है वो. हाउ टू सॉल्व द टू साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट वी नो, लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स. तो हमारे पास अभी 1 2 3 4 चारों वर्टाइसेस अवेलेबल हो गए. अब तीसरी स्टेप में क्या था, वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दोज वर्टाइसेस. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z is equal to 11x plus 8y. This is our object. We have to maximize this function under those restrictions. This is our objective function. Now, what is the value of z at O? What is the value of z at A, z at B, z at C? चारों वैल्यूज आपको निकालना है अलग अलग, और उसमें से फिर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है दैट यू हैव टू चेक एंड राइट द आंसर लाइकवाइज. इसके लिए ऐसा भी सिंबल यूज किया जा सकता, जेड ओ जेड ए मतलब वैल्यू ऑफ जेड एट ए, जेड बी जेड सी. एट ओ का मतलब ओ के कोऑर्डिनेट्स कौन से है, x है 0 y है 0, यहाँ पुट करेंगे तो z बनेगा 0 प्लस 0 है ना, 0 ही होगा वो. a के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 11 इंटू एक्स है ना, 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू वाई मीन्स 8 इंटू 0 44. z एट b 11 इंटू b के लिए x क्या है 4 प्लस 8 इंटू वाई क्या है 2, 44 प्लस 16 दैट इज 60. z एट c, c के लिए x क्या है 0, y क्या है 6, 48 is the answer. So this is the maximum value. तो जो हमारा क्वेश्चन था, मैक्सिमाइज दिस लीनियर फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस, तो वो अभी यहाँ पूरा हो रहा, लेकिन वो आंसर लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि 4 मार्क में से चौथा मार्क उस आंसर को रहेगा. क्या लिखेंगे बताओ? This objective function z is maximum. z को मैक्सिमाइज करना था हमको, इस फंक्शन को. This z is maximum at which vertex? जितने वर्टेक्स उसमें से एक वर्टेक्स
कम से कम रहेगा, तो वो वर्टेक्स है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 2, है कि नहीं? दैट मीन्स फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो भी लिखना जरूरी है। एक्स और वाई की वैल्यूज हमको बताना है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 2, number of chairs 4, number of tables 2 should be manufactured to get the maximum profit, ऐसा कुछ उसका मीनिंग लग सकता। वर्ड प्रॉब्लम अगर तुमको दिया है तो पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर उसको इस मेथड से तो 4 मार्क के ऊपर जाता है वो। इसलिए एग्जाम में ना पहले पूछते थे ना अभी तो पूछेंगे नहीं आपको, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आर टोटली डिलीटेड। एक आधा देख लेते हैं मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम, है ना। मिनिमाइज वाला लिख लेते हैं एक 8वां, 8th वाला। अच्छा, इसमें ये 4 वर्टा से छोड़ के अगर तुमने इधर उधर पॉइंट देखे, क्योंकि ये सभी तो फिजिबल सॉल्यूशंस है, कोई भी पॉइंट तुम देखो यहाँ वहाँ कितने भी इस बाउंड्री के अंदर, तो उसके लिए तुम अगर मान लो z की वैल्यू निकालते, तो दैट वैल्यू ऑफ z विल बी ऑलवेज लेस देन 60। 60 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो वो जो थ्योरम लिखे हमने, रिजल्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम, उसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड में। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑकर्स at least one of the vertices. एट्थ वाला एग्जांपल में मिनिमाइज क्या लिखा है इसने, z is equal to 6x plus 21y subject to the conditions। पहली कंडीशन x plus 2y greater than or equal to 3। दूसरी x plus 4y greater than or equal to 4। x plus 4y। तीसरी कंडीशन 3x plus y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बाद में ये तो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, यानी पूरा सॉल्यूशन जो रहेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं जाएगा। हाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, द गिवन इन इक्वेशंस, the given constraints are, एक बार फिर लिखो, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। पहला x plus 2y इज इक्वल टू 3, दूसरा x plus 4y इज इक्वल टू 4, तीसरा
3x प्लस वाई इक्वल टू 3। सब में ग्रेटर देन वाला सिंबल दिख रहा है इन इक्वेशंस। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 तो कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेंगे ही। सवाल इनका है सिर्फ तीनों के लिए आपको दो दो पॉइंट्स वाले टेबल्स रेडी करना पड़ेगा, फिर उनको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं, आप अपने आंसर पेपर का ही पेज यूज कर सकते। यहाँ पर x y एक पॉइंट लेंगे हम x एक्सिस का, वहां पर y 0 तो x कितना, दूसरा लेंगे y एक्सिस का, वहां x 0 y 0 x 0। Two pairs for every equation we will get एक ही काम है हर एग्जाम्पल में, देर इज नो चेंज एट ऑल। सिर्फ इक्वेशन में, इन इक्वेशन में कहीं पे लेस देन होगा, कहीं ग्रेटर देन होगा, कौन सा सिंबल है वो देख के प्रॉपर साइड यू हैव टू शेड। अब देखो यहाँ y 0 लिया आपने, x कितना बन रहा 3, x 0 ले तो y 3/2, तो 3 0 पहला पॉइंट, दूसरा 0 3/2। यहाँ पर अगर y 0 लेते तो x बनेगा 4 0 पॉइंट, और x 0 ले तो y 1 0 1 दूसरा पॉइंट। यहाँ पर y 0 लेते तो x 1 और x 0 लेते तो y 3 1 0 0 3। चलो x एक्सिस y एक्सिस निकाल लेते हैं हम। आपको लाइंस दिख नहीं रही होंगी, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। x axis means y equal to 0, this is y axis means x equal to 0, this is origin। now on x axis maximum 4, इसलिए यहाँ पर आप 4 यहाँ इतने में आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करो। तो इस पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट बनना चाहिए। 1 2 3 4। इसके बाद में y एक्सिस पे भी ये तो 1.5 है,
मैक्सिमम 3 है, तो वहाँ पर भी आप 4 पार्ट्स शो कर सकते हैं। 1 2 3 के बाद में इधर 4 कहीं तो भी रहेगा। जो आवश्यक है वही नंबर हम शो करेंगे। पहली लाइन देखो, 30 कहाँ है, ये 30, 0 3/2, इसको अगर 1 बोले आपने तो 3/2 बोले थे यहाँ पर 1.5 ना। दूसरा पॉइंट, ज्वाइन कर लो, लाइन निकाल लो। आप तुरंत इक्वेशन लिख लो, बाद में नहीं तो भूल जाओगे कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की है। दूसरी लाइन 4001, यह है 40, 01 यहाँ पर है, कर लो ज्वाइन। तीसरी लाइन 1003, 10 यहाँ और 03 इधर, कर लो ज्वाइन। ये तीनों लाइन को हम डार्क करेंगे। पहली लाइन इक्वेशन था x + 2y = 3। दूसरी लाइन x + 4y = 4। थर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन हो ना। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 3x + y = 3। After drawing the graphs, you have to locate the region, common region, feasible region। तो जैसे पहली लाइन है, इसकी ओरिजिन साइड शेड करेंगे कि नॉन ओरिजिन। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो नेचुरली 0 + 0 0 ग्रेटर देन 3 होता नहीं। इसका मतलब ओरिजिन साइड का एक भी पॉइंट रहेगा नहीं सॉल्यूशन में, सिर्फ नॉन ओरिजिन साइड का। सेकंड लाइन में भी ग्रेटर देन का सिंबल है, तो नॉन ओरिजिन साइड। थर्ड लाइन में भी नॉन ओरिजिन साइड। और ये जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब सॉल्यूशन सेट इज बाउंडेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप स्केल से वो जो कॉमन रीजन मैंने बताया, इसमें पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। कितने वर्टाइसेस तुमको दिख रहे हैं? एक तो ये है, ये पहली बाउंड्री अगर तुम लेते, दूसरी बाउंड्री फिर यहाँ से टर्न हो जाएगी यहाँ,
तीसरी बाउंड्री यहाँ टर्न होगी, चौथी बाउंड्री यहाँ पर, यहाँ चौथी बाउंड्री, और पांचवी यहाँ पर स्ट्रेट अलोंग एक्स एक्सिस, नीचे नहीं जाएगा पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो आपको जैसे भी पैरेलल लाइन निकालना है, ऐसा निकालना है तो निकाल सकते हैं, या फिर किसी को लाइन से तिरछी होना बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेड कर सकते हैं। सिर्फ उस रीजन में आपको पूरे वर्टाइसेस क्लियर दिखना चाहिए। वर्टाइसेस में कंफ्यूजन अगर हुआ तो आपका आंसर गलत भी हो सकता। कॉन्वेक्स सेट है वो, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम यूज होगा। वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो निकालना पड़ेगा आपको, और उनपे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यूज निकालना पड़ेगा, और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू दिखती है वो है अपनी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसके बाद वाला कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे बताओ? द शेडेड रीजन इन दिस फिगर रिप्रेजेंट्स, अच्छा यहाँ शेडेड रीजन का नाम नहीं रहेगा क्योंकि वो ओपन है, इसलिए क्लोज रीजन है तो फिर नाम, वर्टाइसेस के नाम दे सकते हैं आप। यहाँ का ए, इधर में बी, यहाँ पर सी, ये वाला नहीं है, ये तो पॉइंट प्लॉटिंग के लिए हमने लिए थे ये दो पॉइंट्स, नहीं तो हर पॉइंट को वर्टेक्स बोलते रहोगे वैसा नहीं चलेगा। आपको कॉर्नर पॉइंट्स कौन से देखना है? केवल उस कॉन्वेक्स रीजन के, फिजिबल रीजन के। द शेडेड रीजन is the feasible solution। उसमें से ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा है? तो पहले वर्टाइसेस लिखना पड़ेगा, इट्स वर्टाइसेस आर ए, बताओ कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे तो x 0 होगा और y की वैल्यू 3, 0 3। बी और सी तो आपको सॉल्व करके उसको बताना पड़ेगा। डी बता सकते हैं हम, रेडीली अवेलेबल। क्या है कोऑर्डिनेट्स डी के? 4 0, ठीक है, 4 0। B and C they are the points of intersection of the two lines। B है इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और C है इन दोनों का। तो आपको दो पेयर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड, ये सब मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। तो सिंपलेस्ट मेथड बोले तो आपकी एलिमिनेशन मेथड, एंड दो तो लिख लिया हमने, एंड बी सी, B is the point of intersection of two lines, which are they? 3x plus y equal to 3 and x plus 2y equal to 3। Solving them we get
करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मान लो आपको x को एलिमिनेट करना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3x माइनस 3x 0। इक्वेशन 1 में से माइनस क्या कर रहे हैं हम 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, एक के नीचे दूसरा लिखो, पहला इक्वेशन जैसा है वैसा ही, माइनस क्या कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन का 3 टाइम्स 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3x कैंसिल होगा, साइन चेंज, y माइनस 6y कितना माइनस 5y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 कितना माइनस 6। सो व्हाट इज y 6/5, 6/5 y के जगह पुट करेंगे यहाँ पर तो x मिलेगा। तो अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, ग्राफ हमारे सामने है, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज बनाना है, मिनिमाइज करना है। आगे क्या लिखूं, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 in equation number 1, a1 3x plus y के जगह 6/5 is equal to 3. So what do we get? 3x is equal to 15 minus 6 and 9. 9/5 is the value of 3x. So what is x? 3/5. ठीक है, and so what are the coordinates of the point of intersection? B, x coordinate 3/5, y coordinate 6/5। कोऑर्डिनेट जो भी आते हैं वो करेक्टली आप निकालो, सॉल्विंग में गड़बड़ नहीं करना है। उसके बाद में C also, C is the point of intersection of which two lines? पहली 3x plus 2y equal to 3 and दूसरी x plus 4y equal to 4। इनको नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि x दोनों जगह दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे सीधा, x हो जाएगा कैंसल। Subtracting we get 2y minus 4y minus 2y, 3 minus 4 minus 1. So what is y? 1/2. x cancel हो गया, putting y is equal to 1/2 here. x plus 2y equal to 3 में पुट कर दो, what do we get? x plus 2 into 1/2 and 1. So what is x? X and y both we have obtained, and so the coordinates of C become 2, 1/2. What is the objective function? जिसको हमको मिनिमाइज करना है,
that is z is equal to 6x plus 21y. So z at A, z at B, z at C एंड जेड एट डी, ये चार वैल्यूज फाइंड करो, ऑब्जर्व करो कौन सी वैल्यू मिनिमम है देखो, एंड राइट द फाइनल आंसर. एट ए मतलब 0 3, एक्स के जगह 0, वाई के जगह 3, 63 आंसर. जेड एट बी, बी के जगह कितना, एक्स के जगह बी है 3/5 6/5, 3/5 6/5, 6x प्लस 21y, 18/5, 5 दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो 18 प्लस इधर कितना आएगा 126, तो ये वैल्यू होगी 144/5. At C, 6 into 2 plus 21 into 1/2, 12 plus 21/2, तो 12 into 2 and 24 प्लस 21/2, ये हो जाएगा 45/2. जेड एट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स देखे हमने 4 0, 6 into 4 प्लस 21 into 0, 24 इज द आंसर. अब चारों वैल्यू आपके सामने है, 5 से डिवाइड कर दिए तो 28.8, यहाँ 2 से डिवाइड किए तो 22.5. मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही तुमको, एट सी 22.5, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो कंक्लूजन, लास्ट स्टेप, 1 मार्क. Z is minimum at C, coordinates 2 1/2. That means when x is equal to 2 and y is equal to 1/2. सॉल्यूशन आपको बताना है, मतलब x और y की वैल्यूज बताना है. तो इस तरह से आप 1 से लेकर 8 तक जो बीच में बचे 6, उनको पूरा कर सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट. कुछ प्रॉब्लम्स में उसने फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, वो भी पूछा है. तो यहाँ अगर पूछा रहता तुमको मिनिमाइज द फंक्शन, वो तो पूछा ही है, एंड स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी उल्लेख आया नहीं. तो ऐसा अगर पूछा तो यहाँ लिख सकते हैं आप, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन z इज 22.5 या 45/2. दैट विल कंप्लीट योर exercise 7.4, and this is the completion of third lecture. In the next lecture we will discuss some more problems from miscellaneous, and that will be the end of this chapter. Thank you.